We'll start a new topic, electric field due to point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फील्ड से हमको पता लगता है, फील्ड वर्ड सेज स्पेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली स्पेस. व्हाट स्पेस? ए चार्ज applies force on other charge. We know that. A charge can apply force on other material. If other material is not a charge, even then it will apply a force due to induction. ये आपने पढ़ा है. If this particle is not having any net charge, that means plus and minus are equal. Net charge is 0. And here I place one particle which has got negative charges. Will it apply force on this or not? Its charge is 0. This charge is minus q. According to the Coulomb's law, if you multiply the two, what will be the q into 0? 0. So what should be the force? 0. But force is not 0. It always applies a force on it. Why? How? Answer is due to induction. Applies force due to induction. Why induction? All the force charges here, plus, minus, minus, plus, they will get polarized and we get positive charges here and negative charges here. Both are equal in number. ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करता है और इस माइनस को रिपेल करता है. इसका डिस्टेंस r1 है और इसका डिस्टेंस r2 है. दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. r2 इज लार्जर देन r1. विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर? r1 force, that is force of attraction is stronger, force of repulsion is weak. So what will be the net force? Is it 0 or is it force of attraction? It is force of attraction because this is a larger force. समझ आ रहा है? तो अब इस पर लगने वाला फोर्स, क्या वो फोर्स 0 है या कुछ नेट फोर्स है? नेट फोर्स है. It is a net force. This force is larger, this force is smaller. Net force आ गया 1 Newton on this side. So what we see that this object is attracted by a force 1 Newton. जबकि इसका नेट चार्ज क्या है? 0. तो Coulomb's law, is the Coulomb's law wrong? फिर फोर्स क्यों लग रहा है? सोचिए, कूलम्स लॉ से इस पे फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि फोर्स अप्लाई होता है. व्हाई? इज कूलम्स लॉ रॉन्ग और इंडक्शन फिनोमिना इज रॉन्ग? आंसर बोथ आर राइट. कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, अगेन इट इज एप्लीकेबल फॉर ए पॉइंट चार्ज. दिस इज नॉट ए पॉइंट. अगर ये पॉइंट होता तो ये प्लस इधर और माइनस इधर नहीं हो सकते थे, और उस समय R1 और R2 अलग अलग छोटे बड़े नहीं हो सकते थे. तब नेट फोर्स क्या होता? सेम. जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्शन. तो पॉइंट चार्ज अगर होगा तो क्या होगा? नेट फोर्स विल बी 0. समझ गए? ओके. सो व्हाट आई वांट टू से that any charged body applies force on all other charges around it. It applies force on all material due to wherever it can do the induction. There also it will apply the force. But what I want to emphasize is this body is not in contact with this force. This body, even then it applies a force. इसको मैं पुश करना चाहता हूं. हाउ आई कैन पुश इट? आई विल मेक ए कॉन्टैक्ट, पुश इट. आई विल मेक ए कॉन्टैक्ट, पुश इट. बिना कॉन्टैक्ट के मैं पुश नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिना कॉन्टैक्ट के पुश कर सकते हैं. They are not in contact,
यहां हम एक लाए, इसने इसको पुश कर दिया। कैसे पुश कर सकते हैं, जबकि पुश करने के लिए कांटेक्ट इज ए मस्ट, बिना कांटेक्ट के पुश नहीं हो सकता, फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने एक नई चीज इमेजिन की, सोचा कि एक चार्ज अपने चारों तरफ कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो कि पुश कर सकता है, चीजों को पुल कर सकता है, पुश कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। वी विल से दिस वी विल कॉल एज इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज अराउंड इट, इफेक्ट ऑफ चार्ज। देयर इज वन चार्ज, it has effect around it. If any charge come under this effect area, effect space, then this will attract it with a force or it will repel it with a force. This effect, we have given it a name, electric field. What is the name given? This space is electric field, and in this space it has its effects. Because of that effect, it applies force on any other charge present over there. Now this is electric field. Now we try to analyze this electric field. इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो हमने देखा इसकी कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर मैंने ये पार्टिकल रखा, ये एक चार्ज है, चार्ज बॉडी, यहां पर एक पार्टिकल रखा, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। मैंने इस फोर्स को मेजर किया स्प्रिंग लगा के, दिस इज ए 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने इसको रखा, दिस बॉडी एक्सपीरियंस ए 20 न्यूटन फोर्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, व्हाट इज फील्ड हियर? If this is the body, 10 Newton. If this is the body, 20 Newton is the force. What is this? I made a rule. This has got charge 1 coulomb. This has got 2 coulomb. 1 coulomb experience 10 Newton. 20 coulomb, 2 coulomb experience 20 Newton. So, charge of the second body is effective. The force on a body depends upon the charge. Why it is being attracted by it? Because this is applying a field around it. This is applying a electric field around it. This electric field applies a force. Sequence याद रखिए, ये क्या बनाता है चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? दूसरे पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी हमने बनाई E। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए चार्ज Q is the charge on this point which is kept in the electric field. So now there are two charges. Let's give the clear name to them. This which is giving the effect around it, we will call it source charge. What is this? Source charge. I put this charge here to test whether it experience a force. अगर फोर्स होगा तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर इफेक्ट है।
और नहीं लग रहा होगा तो इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट का नाम मैंने क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पे फोर्स लगेगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स नहीं लगेगा तो नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका सिंबल हमने क्या दिया? कैपिटल ई। सो व्हाट इज कैपिटल ई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। इफ आई पुट ए चार्ज Q here, what is the force experienced by this charge? Q multiplied by electric field, Q into E. That is the force on this. If I increase this charge, this body will experience more force. So my formula for force is equal to Q into E. Correct? Where Q is what? Test charge. Now we are talking about force, we are talking about test charge and a source charge. We have read Coulomb's law, which talks about two charges and the force. If the charge, if source charge is Q, placed at distance R, then force on test charge ये होगा, this is according to Coulomb's law. This is according to our concept of electric field. फिर से, this is source charge capital Q, this is test charge small q, there is a distance between the two, and here the effect of this charge, that is electric field, has significance capital E, intensity E. Now what is force on this? I have two methods to approach. पहला मेथड क्या है? Coulomb's law, that says Q into Q upon R square. The second method, here intensity of electric field is E, this is charge Q, the force is Q into E. But situation is same. दोनों में situation same है, then the force should also come same. Both the forces should be same. So we put both the forces same. That shows QE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. दोनों तरफ से Q कैंसिल करिए. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Electric field. Just 1 minute, यहाँ देखिए. What was E here? What is E here? This. What is this charge? Test charge. Force, test charge, electric field. Source charge, distance, electric field. So for electric field intensity, now we have got relations with test charge, relation with source charge. So we must remember both the formulas. Whenever we want to find out electric field or we want relation with source charge, this is the formula. Whenever we want electric field with test charge, this is the formula. Now again we have to define what is the intensity of
of electric field. We know this is the definition, that electric field is what? Space. Okay, then what is capital E? Capital E is intensity of electric field, and this is the quantity we are going to deal with. Ab intensity of electric field, how we can define it? Easy words में कैसे define करेंगे? So we will try to see its formula. E is equal to F upon Q. Okay. If we make the test charge equal to 1, then what is E equal to? Force. So electric field is equal to force. If we place the test charge equal to 1 unit, right? That is electric field. We will now define it. Intensity of electric field here. We know E is equal to F upon Q. If Q is made 1, then E is equal to F. So E के साथ हमेशा एक वर्ड जोड़ कर रखिए. E is force. What is E? What does it do? It applies force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है. किस तरह से फोर्स लगाता है? बिना कांटेक्ट के कैसे वो चीज को खींच सकता है? एक ऑब्जेक्ट के पास, इसके पास चार्जेस हैं, ये यहाँ पर पड़ा है, और इसके पास भी चार्जेस हैं, ये इसको कांटेक्ट नहीं करता, फिर कैसे खींचता है? हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, आप याद कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, पर ये कैसे हो सकता है कि किसी चीज को बिना कांटेक्ट के खींच लिया जाए? तो हमको सोचना पड़ता है, हमको इमेजिन करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है. तो बेसिकली हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमको एक्चुअली नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप क्या होती है, क्योंकि हमको तो वो दिखता नहीं है, हम उसको हाथ में नहीं ले सकते हैं. तो हम क्या सोचते हैं कि वो उसी तरह का होता है जैसे कोई मकड़ी का जाला होता है. मकड़ी का जाला, वेब. ओके, वेब किस तरह की होती है? गुफा के दरवाजे में एक मकड़ी वेब बना लेती, स्पाइडर अपनी वेब बना लेती है, एंड अदर इंसेक्ट्स आर नॉट एबल टू सी दैट वेब. उनको वो वेब नहीं दिखती, जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखता. ओके, जब भी कोई इंसेक्ट जाता है वो उस वेब में फंस जाता है. नाउ सी व्हाट वेब इज डूइंग. वेब इज डूइंग टू जॉब्स. फर्स्ट, इट इन्फॉर्म द स्पाइडर दैट there is an insect in your field of effect, total field where its web is spread, that is the space of effect. Okay, so field क्या काम करता है? It inform the source charge that there is another charge in your field. Information आ गई. Now this sends an instruction. ये उससे पूछता है कि मेरी जात का है कि दूसरी जात का है, यानी मैं प्लस हूं तो वो भी प्लस है कि माइनस है. ठीक है, उधर से जवाब आता है, फील्ड उसको सिग्नल देता है कि ये तो माइनस है. बोले माइनस है, खींच लो, और प्लस है तो
भगा दो। ओके, जब वो बोलता है कि माइनस है, इसको पुल कर लो, तो स्पाइडर की नेट क्या करती है, यहां पर इंसेक्ट आता है, ये नेट उसको ऐसे लपेटती है और इसको ये खींच लेता है, ये ऐसे लिपटते चले जाती है और ये इंसेक्ट ऐसे खींच के स्पाइडर के मुंह में आ जाता है। दिस इज हाउ इट अप्लाइज फोर्स। तो किसने फोर्स अप्लाई किया? नेट की वो स्ट्रिंग ने, जो कि दिखती नहीं है। ठीक है, और अगर स्पाइडर चाहे तो क्या कर सकता है, उस नेट के वो वाली स्ट्रिंग को अपने मुंह से और लंबा करेगा तो दूर चला जाएगा। यही काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। वी कैन जस्ट इमेजिन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर इसी टाइप की कोई चीज होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। क्या वर्क करता है? इट अप्लाइज फोर्स। हमको अलग से वो दिखता नहीं है, हमारी आंख में वो इफेक्ट करता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम जो कुछ भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही देखते हैं, बट दैट वी विल स्टडी इन ऑप्टिक्स। ओके, तो वी कैन जस्ट इमेजिन दैट field is a characteristic due to which one object applies force on the other object without any visible contact। मैंने इसको यहां पर छोड़ दिया, अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया, क्या अर्थ इससे कांटेक्ट करने आई? अर्थ ने कोई हाथ बढ़ाया नहीं, फिर भी ये गया अर्थ की तरफ। अर्थ ने इसको खींचा, कैसे खींच लिया? फोर्स लगाया, तभी तो गया एक्सेलरेट होके। कौन सा फोर्स उसने कैसे लगाया? तो हमने फोर्स के दो क्लासिफिकेशन कर दिए, क्लासिफाइड। वन, जिसके लिए कांटेक्ट चाहिए, दूसरा जिसके लिए कांटेक्ट नहीं चाहिए। दो मेथड हैं फोर्स अप्लाई करने के, जिसमें कांटेक्ट लगता है, लाइक फ्रिक्शन, लाइक पुश। इंजन इज होल्डिंग ए कंपार्टमेंट एंड पुशिंग इट ऑन द रेल, ये सब क्या है? कांटेक्ट। इंजन हमारी कार को चलाता है, कांटेक्ट। दीज आर ऑल कांटेक्ट फोर्सेस, बट दिस फोर्स इज फील्ड फोर्स। व्हाट इज दिस? फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स इज दैट फोर्स ऑन विच कांटेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। हु इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फील्ड फोर्स? So far we know earth or anything which has got mass can apply a field force, and we call it gravitational field force, right? Now we also know that an electric charge is also capable to apply force without contact, so we say electric charge is also capable of applying field force, and we will call it electric field force. Whatever is the quantity of force at a location with a unit test charge, that quantity of force is measurement of intensity of electric field at this point. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं है, फोर्स का मेजरमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स, और फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीज, वाइस वर्सा। If at this place electric field is 10 unit, then what is the force on one charge? 10 unit. And if you have two charges, 20 unit. Okay? So this is how they are related to each other, and this is concept of the electric field. Now, electric field, is it a scalar quantity or a vector quantity? Answer, what is electric field? How it is measured? It is measured by the force which is applied, and force is always applied in a single direction. Therefore, electric field is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. Q is scalar quantity. Then what is direction of electric field? The direction of force.
experienced by test charge. So this is direction of the electric field. Now what is the quantity of electric field? F upon Q. What is direction of electric field? The direction of F. Now what are the unit? ओके, इसका फॉर्मूला देख के यूनिट बताइए. E इज इक्वल टू F अपॉन Q. F Q न्यूटन पर कूलम. ओके, डायमेंशंस बताइए. Dimensions. Newton force. Very good. Upon Coulomb. ठीक है? These are dimensions of electric field. Now this is electric field due to point charge. Why we call it electric field due to point charge? Because we have used Coulomb's formula for it. ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इसके लिए क्या यूज किया? कूलम्स लॉ. और कूलम्स लॉ किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए. इसलिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसके लिए फिट होगा? यस, this relation is for point charge only. Okay, if this is for point charge, then charge और किस तरह का होता है अगर point charge नहीं होता तो? Our answer is we have many shapes of charges which we will call distribution of charges. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं? वी हैव टेकन ए लॉन्ग वेरी थिन स्ट्रिंग, मेटल की स्ट्रिंग ली और उसको हमने टच करके चार्ज दे दिया. ग्लास से, प्लास्टिक से, किसी भी चीज से टच किया, कंडक्शन कराया, कंडक्शन से इसमें चार्ज आ गया. कंडक्शन, इंडक्शन, व्हाटएवर इट इज. वो चार्ज कहाँ रहेगा? दैट चार्ज विल रिपेल ईच अदर. इसलिए फिर से सुनिए, a charge is given to this conductor at this point. The charge will always repel each other and this is a conductor which will allow charge to move. So the charge moves. Move के कहाँ जाएगा? It wants to go away, away, away from other charges. लेकिन अगर सारे चार्ज इधर आ जाएंगे so these charges will move it back. तो चार्ज कहाँ रहेंगे? उन सब में टसल होता है एंड फाइनली व्हाट हैपन्स? दे डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स विद इक्वल डिस्टेंसेस. इन सब ने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? स्पेशलिटी इज दैट ऑन ईच चार्ज द फोर्स इज सेम. इफ द फोर्स इज नॉट सेम देन देयर विल बी सम नेट फोर्स और उस नेट फोर्स के कारण वो चला जाएगा उस तरफ एक्सेलरेट होके. अब हम ये कह रहे हैं इसमें यहां इलेक्ट्रिक चार्ज हैं और रुके हुए हैं. रुके हुए का मतलब क्या? नेट फोर्स कितना? 0. नहीं तो वो चलते होते. अगर इस पर नेट फोर्स 0 है देन व्हाट डज दिस मीन? दिस इज रिपेलिंग इट, दिस इज ऑल्सो रिपेलिंग इट. ये दोनों रिपल्शन कैसे होंगे? इक्वल. अगर इक्वल नहीं होते तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा. उसको जो ऊपर नीचे जाना था जाके फाइनली यहां सेटल्ड है.
And what does it prove? That the net force on each charge is 0. So, number 1 question. Why the charges distribute themselves in a conductor? Answer, due to force of repulsion. Right? How do they decide at what distance they should remain? The answer, they remain at the distances such that the net force on each charge is same. Right? Otherwise, the net force is 0. Net force is 0. Then they set up. ये समझ आ गया? This is how they decide. Okay? Now, sometimes we are asked, if we give charge to a body, we find it exists only on the surface. इसमें हमने ऐसे ड्रिल करके होल कर दिया और इसको चार्ज किया, चार्ज करके इसके होल के अंदर डाल के अंदर में टच किया. फिर हम एक चार्ज नापने वाली चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप लेके आए, उसको इलेक्ट्रोस्कोप को अंदर में टच किया, नो चार्ज. बाहर में टच किया, चार्ज. हमने चार्ज कहां दिया था? अंदर. चार्ज कहां आ गया? बाहर. क्यों? यस, रिपल्शन. देखिए कितना बेसिक आंसर है. एंड 80% स्टूडेंट्स डोंट नो कि बाहर क्यों आ जाता है, और वो तो फंडामेंटल है. द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड, द चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर. सिमिलर चार्जेस रिपेल करके क्या करते हैं? दे वांट टू गो अवे एंड अवे. कहां तक जाना चाहते हैं? याद रखिए, पक्का आंसर, कहां तक जाना चाहते हैं? इंफिनिटी तक. जाते क्यों नहीं? बिकॉज this conductor allows them. After that there is air is insulator, it does not allow it. आप यहां एक कंडक्टर लगा दीजिए, चले जाएंगे. जितनी दूर कंडक्टर लगाएंगे उतनी दूर चले जाएंगे. There is a proof. पावर हाउस से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो तो वहां पे चार्ज डाल देते हैं, वो रिपेल होते होते हमारे घर में आ जाता है. ठीक है? और यहां से जो तार त्रिवेंद्रम तक जाता है उसमें चला जाता है. उसको अल्टीमेटली कहां जाना है? इंफिनिटी. राइट? ओके. सो दैट इज द रीजन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ. दैट इज द रीजन द चार्ज गोज टू द सरफेस. ये दो चीजें पक्का याद रखिए. ओके. नाउ दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. Whenever there is a linear distribution, we don't measure charge with our usual symbol Q. Then how do we measure it? Q से इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि Q एक पॉइंट पर चार्ज होता है और उसकी बॉर्डर होता है उसका. इधर चार्ज नहीं है, इधर नहीं है. ये एक बड़ी लंबी लाइन है जो हमारे घर के सामने लगी है. कितनी लंबी? आप चलते जाइए, ऐसे जाते 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 वो पूरा इंडिया पार कर जाएगी. यहां से जाएगी, दूसरे से जुड़ेगी, तीसरे से जुड़ेगी, चौथे से जुड़ेगी. तो आप उसका चार्ज नापने जाओगे तो चार्ज नाप नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो चार्ज अनंत चला गया, इंफिनिटी तक. तो हम उस चार्ज को Q वाले फॉर्मेट से नहीं नापते. व्हाट इज Q फॉर्मेट? द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी. दैट फॉर्मेट वी डोंट अप्लाई फॉर दिस. तो इसके लिए हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया. हम क्या करेंगे? हमारी आंख के सामने जो तार है, वी विल टेक इट फ्रॉम हियर टू हियर 1 मीटर, एंड वी विल टेक चार्ज ऑन दैट 1 मीटर, एंड दिस वी विल गिव ए पर्टिकुलर नेम. क्या बोलते हैं? द चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके. चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए हमने एक सिंबल बनाया, दैट इज लैम्डा. ठीक. तो इसके चार्ज को Q की बजाय हम क्या लिखा करेंगे? लैम्डा. यू ऑल नो दिस. लैम्डा. ओके. नाउ
I want to ask you, what is the charge on 2 meter length? Lambda multiplied by 2. What is the charge on 10 meter? 10 lambda, right? Okay. Now, what is the charge on a very small length? Very small length. कितनी small? dl. dl is very small length. What is the charge on dl length? Answer, lambda into dl. Okay, now we come back to our calculus. What is dl in calculus? dl is such a small length that we can take that dl is a point. dl is a point and we will apply all the rules which are applicable for point. फिजिक्स में बहुत सारे रूल्स हैं जो सिर्फ पॉइंट पे एप्लीकेबल होते हैं, लेंथ पे एप्लीकेबल नहीं होते. जैसे ये लाइन कितना फोर्स लगाएगी इस चार्ज पर. अब इसके पास यहां से लेके यहां तक Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, पर यहां पर डिस्टेंस R1 है, इस चार्ज का डिस्टेंस R2 है, इसका R3 है. ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा. हर चार्ज अपना अपना अलग अलग फोर्स लगाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में लगाएगा. वी कैन नॉट फाइंड आउट. और इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है फोर्स का. हमारे पास किसका फॉर्मूला है? पॉइंट चार्ज का. तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं. वी टेक ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस हियर dl. नाउ व्हाट विल बी द चार्ज ऑन dl? चार्ज dq. dl पे कितना चार्ज हमने माना? dq ऑन dl इज lambda into dl. ठीक है. तो अब से जब हम लाइन ऑफ चार्ज डील करेंगे तो लाइन ऑफ चार्ज की क्वांटिटीज याद रखिए. व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ? लैम्डा. इसका दूसरा नाम लीनियर चार्ज डेंसिटी. नोट कर लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी. Okay, now in terms of lambda we can always find out a point charge which is dq, and this dq point charge is equal to lambda into dl because dl is as small as a point. Now if this is a point charge, we can always apply, if Coulomb's law, we can always apply formula for electric field. So what is electric field due to dq? Answer, due to dq the electric field also be very small, de. यहां से ये डिस्टेंस हमने लिया r, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो हमारा आंसर है, इसके और इसके लिए तो हमको नहीं पता, इसके लिए पता है कितना. इस dq के लिए दिस इज ए पॉइंट चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon naught dq upon r square. यही होता है ना. ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, 1/4 pi epsilon naught चार्ज अपॉन r square. इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi. This is right. Why this is right? Because dq is a point charge. Okay. Now they say no. Tell us, यहां से लेके यहां तक जितना चार्ज है इसके लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हमने कहा ऐसा करो, इसके लिए निकालो dE, इसके लिए निकालो dE, इसके लिए निकालो dE, फॉर दिस dE, फॉर दिस dE एंड इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम. सबको क्या करना? आपस में ऐड कर देना. सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला फॉर E? E is equal to integration. What are the constants which will come out? Yes,
integrate dq. What is the value of dq? Yes, so lambda is again a constant because the charge per unit length is constant. So what do we get here? dl upon r square. This is our formula of electric field. Due to which distribution? Distribution of charge. Which distribution? Linear distribution. Okay, and now what will be the electric field due to areal surface area, areal charge distribution? ठीक है, इसको देखिए. इन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से इट इज ए वेरी लार्ज एरिया, इसका हम टोटल चार्ज नहीं नाप सकते. जैसे बादलों का चार्ज, अर्थ पर चार्ज, बिल्डिंग पर चार्ज, इट्स ए वेरी लार्ज एरिया, वी डोंट नो द टोटल चार्ज. तो हम उसके चार्ज को कैसे नापेंगे? आंसर है पर स्क्वायर मीटर. कैसे नापेंगे? पर यूनिट एरिया. ओके, सो उसके लिए हम उसका नाम देंगे सिंबल सिग्मा. ये एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा. ठीक. अगर हमारे पास ए एरिया में क्यू चार्ज है, समझ आया? ठीक है, ए एरिया है और उस पे क्यू चार्ज है, तो सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी? क्यू अपॉन ए. और अगर हमको सिग्मा गिवन है और एरिया गिवन है तो टोटल चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए. ओके, देन वी टेक ए वेरी स्मॉल. अब हमको फोर्स निकालना है. कैलकुलेटिंग ई. और ई का फॉर्मूला किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए. सो वो क्रिएट ए पॉइंट चार्ज डी क्यू. उस पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या करते हैं? वी टेक ए वेरी स्मॉल एरिया, पॉइंट लाइक एरिया. हाउ मच इज दिस? ds. तो ds पर चार्ज कितना है? चार्ज dq ऑन ds is dq is equal to सिग्मा इंटू ds. ठीक है, एक एरिया पे सिग्मा तो ds एरिया पे सिग्मा इंटू dr. ये है स्मॉल पॉइंट चार्ज. नाउ वी आर अलाउड फॉर दिस चार्ज टू अप्लाई Coulomb's formula for electric field. And what will be the small electric field due to this at distance r? dE. छोटे छोटे ds बनाएंगे पूरी सरफेस के लिए, उसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कंप्लीट सरफेस. अब आपको एक टेक्निक आ गई. ये टेक्निक आनी बहुत ज़रूरी है क्लास 12th में और कॉम्पिटिटिव के लिए.
फॉर्मूला अप्लाई करिए किसके लिए, पॉइंट के लिए, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, भले लाइन के लिए करना है, सरफेस के लिए करना है या वॉल्यूम के लिए करना है। वॉल्यूम के लिए अभी किया नहीं है, उसको भी कर देते हैं। हमने एक बॉल लिया, जैसे बादल, क्लाउड, क्लाउड के अंदर में फ्रिक्शन हुए, जगह जगह पे चार्ज बन गए फ्रिक्शन के कारण, एंड दैट क्लाउड इज फुल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी कॉल इट ए स्फीयर ऑफ चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज। अब sphere of charge, it's a very large sphere, we cannot calculate the total charge, so we have changed our style of measurement. अब हम चार्ज किस पर नाप लेते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम पे, 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज होगा, that we will say volumetric charge density और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। so उसका हमने नाम रखा, what is this, रो। Volumetric charge density, that is charge per unit volume. Okay, now we want to find out what is the electric field at point P. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई चार्ज लेफ्ट में है, कोई राइट में है, कोई r डिस्टेंस पे है, कोई r1 पे है, कोई r2 पे है। डिस्टेंस भी अलग अलग चार्ज, वी कैन नॉट अप्लाई एनी फॉर्मूला बिकॉज आवर फॉर्मूला इज फॉर पॉइंट चार्ज। फिर से वही करना, क्या, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इंटीग्रेट कर दो। तो हम किसके लिए निकालेंगे, पॉइंट वॉल्यूम के लिए, और पॉइंट वॉल्यूम का नाम क्या, dV, पॉइंट वॉल्यूम dV, पॉइंट एरिया ds, पॉइंट लेंथ dl, याद रखिएगा। ओके, फिर से पॉइंट लेंथ पर चार्ज लैम्डा dl, पॉइंट एरिया पर चार्ज सिग्मा ds, पॉइंट वॉल्यूम पर चार्ज dq, बोलिए, वेरी गुड, रो dV। अब अगला आप बना लोगे, ठीक है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखने वाले हैं। dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E नहीं लिखना, उसको dE लिखना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस। and this integration is to be done for given volume। जितने वॉल्यूम के कारण हमको चाहिए उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। इफ इट इज ए स्फीयर वी विल मेक इट 4/3 पाई r क्यूब, जो भी होगा दैट वी विल डू। तो ये तीनों चीजें हमको क्या बताती हैं, फिर से हमने ये क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमको मालूम है। द सेम पॉइंट चार्ज फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। If there is a charge distribution, we will have to amend the formula and we will have to take help of integration. If it is a linear charge distribution, then the point charge is lambda dl. If it is aerial charge distribution, the point charge is sigma ds
and for volumetric the point charge is rho, yes, rho dV, correct? And accordingly then we can apply the formula for electric field and integrate it. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी भी पॉइंट चार्ज का डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइए, unless we are sure that this is a point charge, we cannot, right? So we will close it up to this today, and in the next class we will study what is a dipole and how electric field is given by a dipole, because dipole is something with which this world is made. इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज डाइपोल ही है, और डाइपोल में डाई मीन्स दो किनारे, एक किनारा प्लस और एक माइनस, हर चीज डाइपोल है। एंड वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं, दैट वी हैव टू स्टडी। कितना बनाता है, वी हैव टू स्टडी। थर्ड, if that dipole is kept in an electric field, how do it behave? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चारों तरफ फैला हो सकता है, उसमें डाइपोल हो सकते हैं, वो डाइपोल कैसे रहते हैं, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, all this we will study in the next class, right? Okay, thank you.